Hello students, good morning. Welcome back our English grammar lecture. Now we are going to start chapter 4 and 5th short summary with exercise. आपको मज़ा आएगा इसमें. देखो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो. ये मैंने थोड़ा सा फनी टाइप का चार्ट बनाया है, लाइक अ प्लांट, है ना. आप देख सकते हो. हम है इसमें से थोड़ा सा फिर से नॉलेज लेंगे, नाउन्स के बारे में रिवाइज करेंगे, एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे. डन. नाउन्स. So we all know that things, all naming words are nouns. They may be names of persons, animals, things, places, etc. In general, or they may be names of any particular persons, things, or places. Then, or we all know that thing is there are different kinds of names. Nouns are divided into 5 different kinds. You can see here the 5 different kinds of nouns are, that is, first one, COMMONNOUNS, common nouns. Second one, PROPERNOUNS, proper nouns. Third one, COLLECTIVENOUNS, collective nouns. Fourth one, MATERIALNOUNS, material nouns. And the fifth one, ABSTRACTNOUNS, abstract nouns. Means first one common nouns, second one proper noun, third one collective noun, fourth one material noun, and fifth one abstract noun. First one common noun. So we all know that thing, common names given to a person or an animal, a place, a thing of the same kind are called common nouns. They stand for persons, things, animals, places, etc. in a common, and none of them refer to any particular name. Common nouns not refer any particular name. We all know that thing, वो कोई particular चीज़ का है या कोई people का है या place का हमें name दिखाता है नहीं, कि यही वो लड़का है, कि यही उसका नेम है. सिर्फ जनरली जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो लाइक अ बॉय, गर्ल, चाइल्ड, पेरेंट्स, बुक्स, टेबल, बनानास, एप्पल्स, पैरोट, फ्लावर्स, गार्डन्स, रिवर, माउंटेन. हमने इसमें किसी को पर्टिकुलरली डिफाइन किया? नो. क्या यही वो माउंटेन है, कि यही वो रिवर है, कि यही गर्ल है, कि यही बॉय है, ऐसा कुछ भी हमने इसमें पर्टिकुलरली डिफाइन किया है नहीं. इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन. डन. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन मीन्स we all know that thing, nouns used to name a particular person, thing, places, etc. are called a proper noun. We use a proper name of anything, like a people है, persons कहते हैं, thing है, place है, उसके हम proper नाम यूज़ करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? proper noun. They refer to a particular names of a person, book, places, animals, and month, day, week of the day, etc. जिसके हम प्रॉपरली हम उसके नेम लें, हम प्रॉपरली वो डिफाइन कर सकते कि यही मंथ, यही डे, यही गर्ल, यही बॉय है. प्रॉपरली हम उसका नेम लें तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय का नेम ले तो आरव है. फिर हम ऐसा बोले कि पीयू, तो आपने पर्टिकुलरली पर्सन को डिफाइन किया है. यस. सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन. For more example, Mahabharata, and next one is Ramayana. Next one city name is Mumbai. Next one state's name is Maharashtra, Gujarat. Next one country name is India, Canada. फिर मंथ नेम इज़ जनवरी, फेब्रुआरी है, दिसंबर है, नवंबर, एनी मंथ नेम. एंड नेक्स्ट वन वीक ऑफ द डे नेम बोले हम तो मंडे, ट्यूसडे. सो दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन. हमने प्रॉपरली सब कुछ डिफाइन किया है. देन and also proper nouns names written with always capital letter. We have to use a capital letter in the first of the proper noun. Done. And the third one, collective noun.
Collective nouns means when nouns stand for a group of people, things, or animals taken together as a whole, they are called a collective noun. Then, oftenly we use words which stand for a collection of persons, things, animals. So these all are a collective noun. हम collective noun के लिए हम कुछ भी ऐसा word है जो ग्रुप के लिए हो वो हम यूज़ करते हैं ना, जो पूरा ग्रुप दिखाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, collective noun. They stand for collection of peoples, things, animals, etc. So we can say that this is a collective noun. For example, herd of a cattle, army of soldiers, bouquet of flowers, class of students. Done. These all are example of collective noun. Fourth one, material nouns. Material nouns means, so fourth one, material nouns means you know that thing we use a different material or a substance to make anything. हाँ, हम कुछ भी चीज़ बनाने के लिए अलग अलग चीज़ का है अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं. डिफरेंट सब्सटेंसेस और मटेरियल्स आर यूज टू मेक अ डिफरेंट थिंग्स. So we can say that the substance or a material which is used to make anything is called a material noun. कुछ भी बनाने के लिए हम जो भी मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो भी बनाना हो, जो मटेरियल का हमने यूज़ किया है उसको क्या बोलेंगे हम, material nouns. They are names of a material from which things are made. Nouns which name materials that are used to make a other thing are called a material noun. For example, wood, cotton, clay, gold, silver, water, milk, curd, etc. Examples of material nouns. Done. And the fifth one, abstract noun. Abstract nouns means so far you have learned words naming people, things or places that you can see or touch. But there are also names of words that you cannot see or touch. हमें पता है हम कितने सालों से है वो वर्ड है वो सीखते आ रहे हैं कि हमारी रूटीन लाइफ में हम जो भी वर्ड है वो यूज़ करते हैं, जो हम देख सकते हो और बोल सकते हो वैसे भी वर्ड होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम देख भी नहीं सकते हैं और उसको टच भी नहीं कर सकते, बट उसको हम फील कर सकते हैं. जस्ट वी कैन फील दैट बट कैन नॉट टच और कैन नॉट सी, एंड दैट वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन the nouns which name some feelings, actions, qualities, state, art or a subject are called a abstract noun. उसको हम क्या बोलेंगे, abstract noun. आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि just we can feel, not we cannot see and we cannot touch. That nouns is abstract noun. For example, love, happiness, sadness, anger, health, walk, love, bravery, etc. Example of abstract noun. Done. Now we are going to start some extra exercise. थोड़ी है तो आपको है वो याद रह जाएगा. Done. So first one, Everest. So Everest is the proper mountain name. Everest mountain है. So दिस नाउन इज प्रॉपर नाउन. सो हम यहाँ पे लिखेंगे PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन इज आरव. सो वी ऑल नो दैट थिंग. आरव इज द नेम ऑफ अ बॉय, इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय. हमारे क्लास में आरव हो तो हम कह सकते हैं कि आरव तो एक ही पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात किया है. सो आरव क्या बन गया, प्रॉपर नाउन. सो आवर आंसर इज प्रॉपर नाउन. एंड द थर्ड वन इज क्लास. सो व्हेन वी यूज दिस वर्ड क्लास, when we see lots of a student in the one room, so we can say that this is a class of a student. So हम सभी student के लिए class word use किया. Yes, so class is a collective noun.
Fourth one, curd. So we all know that thing buttermilk made from curd. So curd is a material for buttermilk. Done. So curd is a material noun. आपको पता चल गया आंसर. नेक्स्ट वन HAT हैट. हैट मीन्स हम किसी को हैट करते हैं, हम कोई चीज़ पसंद ना होते तो हम कहते हैं आई हैट दिस थिंग. ना पसंद, धिक्कारना, तो उसको हम फील कर सकते हैं. यस, वी जस्ट फील हैट. वी कैन नॉट सी और वी कैन नॉट टच. सो दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सिक्स वन, गार्डन. हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफाई गार्डन का नेम लिया है. नो, मैन कैन नॉट हियर रिफर एनी गार्डन. सो दिस इज अ कॉमन नाउन. सेवंथ, मिस्टर शर्मा. सो मिस्टर शर्मा इज एनी पर्सन. यस, तो कोई पर्सन हो जिसका नेम है हम कहते हैं कि मिस्टर शर्मा. सो वो पर्टिकुलर पर्सन हुआ. सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. एंड द नेक्स्ट वन, CROWD, क्राउड. क्राउड मीन्स हमें पता है कि पीपल चौक इतने सारे खड़े होते हैं तो उसके हम क्या बोलते हैं, क्राउड ऑफ अ पीपल. सो वी यूज़ अ क्राउड वर्ड फॉर लॉट्स ऑफ पीपल. सो क्राउड इज़ अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन के लिए हमने यूज़ किया है. And the next one, cotton. So we all know that thing, our clothes made from cotton. So cotton is a material for cloth. So cotton is a material noun. टेंथ नंबर, एंगर. एंगर मीन्स गुस्सा होना हम जो कहते हैं. तो वी कैन फील एंगर, वी कैन नॉट टच एंड वी कैन नॉट सी. सो दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट वन, आर्मी. सो वी ऑल नो दैट थिंग, वी यूज़ दिस वर्ड फॉर अ सोल्जर्स. कितने सारे सोल्जर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी. सो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. And the last one, name is flower. So we specify any flower name here? No, we cannot specify any flower name. So this is a common noun. So we finished extra exercise of chapter 5 and now we are going to start a short summary of chapter 5 that is nouns, numbers. मैंने यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट समरी बनाई है. आप भी अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हो और इतना याद रख लोगे ना तो आपको टेक्स्ट बुक्स में से कुछ भी देखना पड़ेगा नहीं. आपको इतना क्लियर होगा ना तो सब कुछ आपको आसानी से याद रह जाएगा. मैं बार बार ये सब इसलिए करा रही हूँ कि आपको ग्रामर है वो थोड़ा सा टफ लगता होगा, इसलिए मैं ये शॉर्ट समरी और बार बार रिवीजन करा के आपके ग्रामर को बहुत ही इजी बना रही हूँ क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा. डन. चैप्टर 5, नाउन्स. वी ऑल नो दैट थिंग, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. डन. So numerically nouns grouped into two parts and that is countable nouns and uncountable noun. Done.
Countable nouns means we can count that noun, this called countable nouns, and we cannot count are called uncountable noun. This is a simple definition of these two nouns, countable nouns and uncountable nouns. And also countable nouns are grouped into two parts, and that is first one singular noun and second one plural noun. So we all know that thing, singular noun denoting only one and plural noun denoting more than one. सिंगुलर नाउन कोई एक चीज़ को दिखाता है और एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन. डन, सिंपल है ये. अब रूल्स देखो, मैंने है वो कैसे आपके लिए रूल्स का चार्ट बनाया है. आप सिर्फ इतना याद रख लोगे ना तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट वन है एड एस, मीन्स प्लूरल कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन. सिंपल से हम नाउन के पीछे एड एस है वो ऐड कर देंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा. नेक्स्ट वन, नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स हैज़ अ हिसिंग साउंड, सो वी हैड अ ई एस टू मेक देयर प्लूरल. वी एड ई एस एंड ऑफ दिस लेटर, ए लेटर के पीछे हम ई एस है वो ऐड कर देंगे तो ई लेटर वाला जो नाउन होगा वो बन जाएगा प्लूरल. एंड द थर्ड वन वाई, बट वाई बिफोर वोवेल. देखो मैंने ब्रैकेट में सिर्फ वोवेल लिखा है तो आपको इतना ही रखना है, वाई एंड वाई बिफोर वोवेल. सो सिंपली वी एड एस टू मेक इट्स प्लूरल. डन. फोर्थ वन वाई, देखो वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आगे पीछे ही लिखा है तो आपको क्लियर हो जाएगा. वाई एंड वाई बिफोर कॉन्सोनेंट, सो वाई चेंज इनटू आई ई एस टू मेक इट्स प्लूरल. प्लूरल फॉर्म में वाई निकल जाएगा और उसका बन जाएगा आई ई एस. डन. फिफ्थ वन ओ, सिंपल से ओ हो तो ई एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा उसका प्लूरल. बट सम इरेग्युलर नाउन्स ending with double O and O simply take a S to make its plural. Seventh, F or FE. So F or FE last में हो तो F or FE change into VES. But some irregular noun ends with a F or FE but simple take S to make its plural. एंड एट वन इनसाइड वोवेल. इनसाइड वोवेल आपको पता ही है कि जो इनसाइड वोवेल होता है वर्ड में उसमें चेंजेस कर देंगे तो उसका बन जाएगा प्लूरल फॉर्म. एंड नाइन्थ वन रिमेनिंग सेम, और कुछ ऐसे हमने जो याद रखने के लिए वर्ड्स है वो सिंगुलर में भी सेम होता है और उसका प्लूरल भी सेम होता है जिसको हमें कंपलसरी याद रखना है. डन. सो दिस ऑल आर रूल्स ऑफ मेकिंग अ प्लूरल फॉर्म. डन. अच्छे से ये चार्ट को देख लो. So furthermore exercise of chapter 5 nouns. अब सबका फेवरेट मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच ही करना है, उसका प्लूरल फॉर्म फाइंड करना है और उसके साथ मैच कर देना है. फर्स्ट वन देखो, WOLF वुल्फ. सो वुल्फ का है वो प्लूरल फॉर्म फाइंड आउट करो. ये है नो, ये है नो, ये है नो, ये है नो. एफ का है वो क्या चेंज हो जाएगा VES में, तो देखो यहाँ है यस, WOLVES. सो दिस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वुल्फ. वुल्फ, वुल्फ्स. डन. सो वी मैच विथ इट. कर दिया है हमने मैच. And next one is LA double S class. So you can find here double S. So double S है तो हम क्या ऐड कर देंगे ES to make its plural. तो क्लास का बन जाएगा क्लासेस. चलो फाइंड आउट करो. ये तो बेंचेस है, ये टीथ है, ये पोटैटोस है, ये वाइफ्स है और ये क्या है क्लासेस. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्लास. सो वी मैच विथ इट. नेक्स्ट वन इज़ डियर. तो हमने ये कंपलसरी याद रखा था कि डियर का है वो प्लूरल डियर ही रहेगा. सो यहाँ पे है दिस इज़ अ सिंपल थिंग, मैच इट. अब भी अपनी नोटबुक में लिख कर अपने आप मैच करना तो आपको याद रह जाएगा, मज़ा आएगा इसमें. फिफ्थ वन टूथ. सो टूथ का बन जाएगा टीथ. वोवेल चेंजेस. यू कैन सी योर बेंचेस. No teeth. Yes, so our answer is tooth, teeth.
नेक्स्ट वन मैन, ऑल्सो वोवेल चेंजेस इन दिस नाउन। मैन का हो जाएगा मैन, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, MAN, MEN, मेजिट। POTATO, पोटैटो, सो उसका हो जाएगा पोटैटोज। सो कहाँ पे है पोटैटोज, यहाँ रहा। नेक्स्ट वन कुक्कू, तो कुक्कू का क्या होगा, इसमें देखो कहाँ पे है, यस यहाँ पे, क्या हो गया कुक्कूज। सिंपल से एस ऐड किया है तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। एंड नेक्स्ट वन वाइफ, वाइफ डबल एफ, सॉरी FE, सो FE चेंज इनटू VES, सो वाइफ का हो गया वाइफ्स। सो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। नेक्स्ट वन ROOF, रूफ, रूफ का हो गया रूफ्स, मैच इट। नेक्स्ट वन वर्क, सिंपल है के है तो उसमें कुछ होगा नहीं, सिंपल से हम एस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वर्क्स। LILY लिली, वाई चेंज इनटू IES, सो लिली का हो जाएगा लिलीज। हम यहाँ पे बेंच भूल गए, BENCH बेंच, तो उसका हो गया बेंचेस। डन। You can see your answer of this all exercise.